Okay. So I'm recording this session as well for your convenience. So this is, I would say, the interface of PTC Creo. I'm hoping everyone who has like been able to install the software properly will be able to see the screen. All right. So now the first thing that you do when you like log into this software is basically to select the working directory. That's the basic and the most I would say number one step that you need to do. जब भी आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हो, the first thing that you need to do is to select the working directory. What is a working directory? Basically, you need to choose a folder on your computer where you will be saving all your work. All right. अगर आप किसी component product के ऊपर काम कर रहे हो, किसी project के ऊपर काम कर रहे हो, so you need to basically identify a folder on your computer. You can create one, and then you can basically select it as the working directory. So how do you do that? There's this icon on the top left corner which reads at select working directory. You just click on this and then you choose that folder. Let's say I choose that folder. I go to that particular folder using this, I would say, GUI, and then this is where I have created a folder for CARA 2021. All right. यहाँ पे let's say आज 2nd March है. I've already created a folder. If you haven't, you can just right click. You can create a new folder as well. All right. Let's say I can create a new folder XYZ. All right. I can name it anything. I just randomly named it XYZ and create it here. So I all like immediately enter into XYZ. You can choose any of these folders, and as and when you do that, let's say I choose the 2nd March to 2021, or let's say I choose the trials folder. All right. So this is the folder I need to choose for selecting my working directory. I just need to click OK. Before I do that, just read here what it says. It says welcome to Creo Parametric Education Edition and the version. जब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके ओके करूंगा, now what does it say? It says successfully changed to C users del videos CARA 2021 trials directory. So it says कि आपने successfully अपना working directory set कर लिया है. All right. Now there are other ways to do this as well. There is this favorites folder. एक तो working directory आप इस तरीके से set कर सकते हो. And now let's say that you're working on a like big project that would be there for the next 2 or 3 months. Now if you find it a tedious thing कि आपको हर बार यहाँ पे आना है, जब भी सॉफ्टवेयर आप रीस्टार्ट करते हो, आप सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी में आओगे, ये आपको पाथ हर बार चुनना पड़ेगा. बेसिकली यहाँ पे जाओ, यहाँ मतलब wherever, let's say this one, or I would say here, and then you choose like let's say trials as the working directory. You need to go like folder into folder into folder, and you do not want to do this thing. आपको है कि ये folder मुझे directly मिल जाए. What you can do is whenever you restart your software, you need to go to this folder called favorites. All right. यहाँ favorites में मेरे पास अभी 2 folders है. मेरे पास वो trials वाला folder जो मैंने set किया है as my working directory, I do not have that. So how can I get that thing right here in my favorites folder? So you need to travel that path one last time. यहाँ पे जाओ. Let's say I go to this path and CARA 2021. यहाँ पे trials का जो folder था मेरे पास, I went through this option. All right. यहाँ पे I'll do a right click. As and when I do that, there is this option of adding it to the favorites. All right. So you can add it to favorites. Let's say I add one other folder, or I can show it to you later. So यहाँ पे I've added it to my favorites folder. तो ये option dull हो गई. All right. When I right click on it. So you go to this option of favorites now. Earlier यहाँ पे आपको सिर्फ 2 folders दिख रहे थे, but अब यहाँ पे आपको 3 folders दिख रहे हैं. I can repeat the step. I can add one other folder and like show you how you can add any folder to your favorites folder. Let's say I go to Dell PC. I go to this option of users, Dell, and then videos, CARA 2021, and then let's say 2nd March 2021. This is my folder that I would like to set as my working directory, and also the folder which I would like to add in my favorites or like option. So I can right click on it. I'll add it to favorites. All right. And there is also this option of set working directory. If I go to trials and do a right click, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही बिकॉज मैंने इसे ऑलरेडी इसी फोल्डर को एज अ वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रखा है, तो वो ऑप्शन मुझे नहीं देता. ऑलराइट. फेवरेट्स में भी ऐड कर रखे हैं, तो वो ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा. मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा. पर लेट्स से मैं ये फोल्डर को ऐड करना चाहता हूँ अपने फेवरेट्स में. आई डू अ राइट क्लिक एंड आई बेसिकली ऐड इट टू माय फेवरेट्स. तो यहाँ पे मैं फेवरेट्स में जाऊंगा एंड यू कैन सी 2nd March 2021 हैज बीन एडेड टू माय फेवरेट्स फोल्डर. ऑलराइट. सो यहाँ पे आई कैन डू अ राइट क्लिक एंड सेट इट एज माय वर्किंग डायरेक्टरी एज वेल. अगर ये नहीं है कि आपने एक बार वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ली तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते. आपका जब मन करे आप उसे तब चेंज कर सकते हो. बट आई स्टिल कंटिन्यू विद ट्रायल्स एज माय वर्किंग डायरेक्टरी फॉर दिस सेशन और दिस क्लास टुडे.
So this is all about setting up the working directory. I've talked in quite a bit of detail about this in that video that I've already shared with you guys. If you can watch it, यहाँ पे मैंने आपको quick overview दे दिया. So do remember the first thing that you need to do is selecting the working directory. Now if there is a question in your mind कि सर अगर इसे set नहीं करते working directory को तो problem क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके अगर आपने इसे सेट नहीं किया तो ये एट रैंडम आपका बेसिकली पीटीसी क्रियो का जो सी ड्राइव में फोल्डर होता है वहां पे जाके आपके सारे वर्क को सेव करना शुरू कर देगा, जिससे आपको अपना पार्ट जो आपने बनाया है इसके अंदर या थ्री डी मॉडलिंग की है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है. सो इट्स जस्ट अबाउट डेटा सेग्रीगेशन. जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक मतलब प्रॉपर फोल्डर बना के रखते हो वे स्टोर या लाइक स्टडी मटेरियल या पर्सनल वर्क और योर असाइनमेंट्स, ऐसे ही आप पीटीसी क्रियो का एक फोल्डर बना के रखोगे जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकते हो. ऑलराइट, सो देयर इज वन पर्सन हुज रेज्ड हिज हैंड. आकाश, हाँ जी. सर वर्किंग डायरेक्टरी वाला जो हमारा फोल्डर होता है सर, उससे हम डायरेक्टली नहीं ओपन कर सकते अपना अपने जो स्केचेस वगैरह हमने बनाए हुए हैं? आप ओपन कर सकते हो, ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ओपन करने के बाद जब सेव करोगे ना वो सेव उस डायरेक्टरी में नहीं करेगा, वो सेव जाके सी ड्राइव में जो पीटीसी क्रियो का ऑप्शन है ना मतलब फोल्डर है वो वहां जाके सेव कर देता है जो भी क्योंकि मॉडिफिकेशन करोगे ओपन करने के बाद. सर मैंने क्योंकि कल एक बार ओपन करके देखा था ना, तो वो वर्किंग डायरेक्टरी के वाले फोल्डर में ही जाके, तो वहां से कह रहा था कि मतलब वो कोई एक्सेस वगैरह नहीं है. पीटीसी 7 में शायद ऐसा ऑप्शन आ गया हो, बट आई कैन ओपन इट, ओपन हो जाता है बट व्हेन यू क्लिक ऑन सेव आफ्टर मॉडिफाइंग दैट पार्ट वो उस वर्किंग डायरेक्टरी में सेव नहीं होगा जहां से आपने ओपन किया है, बिकॉज आपने उसको बोला नहीं कि ये वर्किंग डायरेक्टरी है. ठीक है, सो यू कैन ऑलराइट, so this is the way you can set up your working directory. ठीक है, now let me close this option. So you can also check कि आपकी working directory कौन सी है. अगर let's say you somehow forget कि मैंने किस चीज को working directory set किया है, favorites में मेरे पास तो 10 folder थे, which one is the one where I have set the working directory. So there is this option of utilities, right? When everything is closed, I haven't opened any sort of sketch mode or 3D part modeling mode. तब जब ये स्क्रीन आपके पास है, you can go to this option of utilities. यूटिलिटीज में देयर इज दिस ऑप्शन ऑफ ओपन सिस्टम विंडो. जब मैं इसको क्लिक करूंगा ये बेसिकली मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा. लाइक लेट्स से आई क्लिक ऑन इट. सो कैन एवरीवन सी द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो? आई थिंक सो. गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन. ऑलराइट, कैन एवरीवन सी द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ऑन माय स्क्रीन? Yes, sir. ऑलराइट, सो ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में आप देख सकते हो. ये दोबारा दिखा देता हूं मैं एक बार करके. यूटिलिटीज, ओपन सिस्टम विंडो, एंड दिस इज व्हाट यू सी. सो यहाँ पे मेरी वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन पता लग जाती है. सो इट सेज योर वर्किंग डायरेक्टरी इज बेसिकली सी यूजर्स डेल वीडियोस कैटा 2021 ट्रायल्स, एंड दिस इज व्हाट वी सेट इन द स्टार्टिंग एज आवर वर्किंग डायरेक्टरी. ठीक है, सो आई कैन क्लोज इट. Now, coming to the next part, all right. So we need to now understand the mouse controls, all right? How do you operate the mouse key buttons and some of the key shortcuts, keyboard shortcuts? That's something important. So what I've done is I've already created a 3D part. I will call it as a dice, all right? I can show it to you. I can open it. Now, when I click on open, because I have saved that part in my trials folder, so ये open करने के time उसी working directory से उठाने की कोशिश करेगा, all right? So dice. So I can open this part. If you want, you can also preview what's there in that part. Like if you have a complex assembly in place and there are like multiple components, you can use this option of preview. Like let's say if I click on this one, मेरे कंप्यूटर में वैसे I don't know why it doesn't show, but ये sketch होता है, all right? When you see this extension .sec, that's a sketch, all right? When you see, I'll explain what's a sketch. When you see Sir, this extension, जी. so it's not showing, the preview one is not working for any of the sketches that were given in the tute sheets. Actually, it does work. I'll be honest. Like last year when I was teaching this thing in the laboratories, CAD/CAM lab में, वहाँ पे वो sketches, everything, assembly, सब कुछ show करता है. I don't know this version, somehow the license, क्या issue है? I'm not sure. But it does show actually. Okay, right, sir. Yeah. सर So जब हम उस पे यहाँ क्लिक पे करते हैं वर्किंग दूसरी डायरेक्टरी, यहाँ पे sorry क्या कुछ कह रहे हो आकाश? हेलो सर, जब उस पे क्लिक करते हैं ना वर्किंग डायरेक्टरी पे, तो सर वो शो नहीं करता सर पार्ट जो बनाया होता है. मतलब जैसे मैंने सेव करा वर्किंग डायरेक्टरी पे क्लिक करा तो सर शो नहीं कर रहा. मैंने भी ये बनाया था ना डाइस सा, तो मतलब शो नहीं कर रहा सर.
तुमने सेट वर्किंग डायरेक्टरी वही की है कि कहीं और की है? अपना वो यूटिलिटीज वाले ऑप्शन से चेक किया था या नीचे यहाँ पे रीड किया था आपने? ये सर मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था सर। डॉक्यूमेंट्स में जब मैंने क्लिक करा तो उसमें अपने वर्किंग डायरेक्टरी पे क्लिक करा तो उसके 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 अंदर शो नहीं कर रहा है सर, ये मतलब जो मैंने सेव किया था नहीं, वो। देखो मैं आपको जैसे वेट अ सेकंड, जस्ट Same problem even I was facing. Then I added all my files to my favorites and वहाँ से मैं खोलती हूँ. So now it's working. होना चाहिए, जस्ट गिव मी अ सेक, वेट, लाइक यूजर्स, जस्ट वन सेकंड. Just one second, sorry. Like if I show this folder to you, so यहाँ पे मैंने अगर कुछ काम किया है, so all these parts I can see them. मैंने इनको working directory set किया था और इसके अंदर मेरे सारे parts मतलब I can see them. Like you're saying कि ये parts आपको नहीं दिखते आपके मतलब Windows Explorer वाली विंडो नहीं के अंदर? sir. Hmm? नहीं. No Should not sir. नहीं सर, have. Regarding Not सर विंडोज sure. एक्सप्लोरर में आते हैं लेकिन सर उसमें ना पता क्या होता है, जो सिमुलेट होता है ना, सिमुलेट उसमें खुलते हैं। नॉट श्योर. आई वुड से जब आपका लैब सेशन होगा ना उस टाइम मेरे साथ एक बार स्क्रीन शेयर करना. अभी लेक्चर में लेट मी गो थ्रू दिस स्टफ. लाइक आपका वहाँ पे अपने पास टाइम ज्यादा होता है ना, वी हैव लाइक 2.5 hours. आई कैन शेयर योर स्क्रीन और वहाँ पे आई कैन सी लाइक व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है? ऑलराइट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ओपनिंग दिस पार्ट. ऑलराइट. सर वर्किंग डायरेक्टरी कहीं भी सेट हो सकती है? हाँ, आपके पीसी में आप कोई भी फोल्डर कहीं पे भी सेट करना चाहो, लाइक यू जस्ट नीड टू क्रिएट दैट फोल्डर एंड सिलेक्ट इट. मतलब any drive, any place, there is no concern about that. Simply basically folder system है. Data segregation जैसे आप normally अपने कंप्यूटर में करते हो, it's the exact same thing. कोई ज़्यादा difference नहीं है. It's just that you need to do it like as and when you launch the software. Otherwise आप part बना के save करते रहोगे, फिर वो मिलेगा नहीं part. मतलब वो कहीं जाके bin PTC Creo bin उसमें जाके पड़ा होता है, and then you need to search for it. और उसकी फिर कुछ extension files भी बनती हैं. कई बार जब modifications करते हैं ना, डाइस के बाद भी एक दो फाइल्स उसकी कुछ मतलब पार्ट फाइल्स बन जाती हैं, वो फिर आप कॉपी करके ले आओगे, मिलेंगे नहीं बाद में. सो यू हैव सर्टेन इश्यूज, सो बेटर यू सेट अ पर्टिकुलर फोल्डर. सो राइट. सो यहाँ पे you can see even the images are different for a part file. When I say .prt, I mean a part. When I say a part, I mean a 3D like component. When I say a sketch, I just mean a 2D component, whatever I'm trying to say, build here. But I'll open this dice part, all right? So if I do that, just give it a few seconds. यहाँ पे ये load हो जाता है. All right, I've already created it. You do not need to worry. I've already shared it with all the students in my lab. They can give it to you as well if you want to play around with it. All I'm trying to do here is to teach you the mouse controls. Nothing else. यहाँ पे आपको you do not need to worry. How did I create this part? What's the step? What are the steps involved? What are the dimensions? Nothing of that sort. Just mouse controls. So यहाँ पे what you can see is basically 3 planes. All right. You do not need to worry ये planes क्या है. They are very important. As of now, you do not need to worry. But later when you go for 3D part modeling, they are very, very important. So what I can do is I can actually shut them down. How can I do that? यहाँ पे you have this option, all right? यहाँ से आप कुछ भी shut down कर सकते हो. Coordinate system, plane system. Let's say when I click untick this option of planes, you can see the planes do not exist anymore. And there is the only reason is because we are just learning mouse controls. So I would say if you're having a different PC right there with you, you can practice them with me. Otherwise, you can note down what I'm doing right now. We just need to understand how we can zoom the components, zoom out, zoom in, pan out, rotate the components. So when I first say if I want to zoom in or zoom out of any component, because आपकी assemblies बाद में काफी complex होंगी, आपको zoom in, zoom out करना आना चाहिए. So you need to have one first thing. आपके पास सेपरेट माउस होना चाहिए. कीपैड से नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, एक सेपरेट माउस रखो अपने पास, वो स्क्रॉल 3 बटन वाला. बेसिकली यू नीड टू हैव अ स्क्रॉल बटन. सो इफ आई हैव माय स्क्रॉल बटन एंड इफ आई मूव इट बैकवर्ड्स, स्क्रॉल बटन को बैकवर्ड्स मूव करता हूं, यू कैन सी इट इज गेटिंग zoomed लाइक इन. ठीक है, वो स्क्रीन से बाहर चला गया मेरा पार्ट एंड आई कांट फर्दर डू इट. तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा पार्ट कहाँ गया और उसे वापस कैसे लेके आना है? उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज refit. So it basically will refit your part to the screen. So when I click on it,
यहाँ पे ये रीफिट हो जाता है। आई कैन डू इट अगेन। अगर मैं स्क्रॉल बार को बैकवर्ड्स मूव करता हूँ, ये जूम इन हो जाता है। अगर ये ज्यादा बाहर चला गया, what you can do is basically आप इसको refit कर सकते हो। And if you move the scroll bar forward, अगर मैं इसको आगे मूव करता हूँ, so you can say this is getting basically zoomed out। तो अगर ये बहुत छोटा हो गया अगेन और आपको नहीं दिख पा रहा कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर कहाँ फिट हो रहा है, you can again refit। So using the scroll bar, just moving it backwards and forwards, मैं zoom in और zoom out कर सकता हूँ respectively। Likewise, अगर आपको अपने component को basically rotate करना है, now when I'm about to rotate this component, you need to focus on this thing। I will be rotating it about the coordinate axis। You can see यहाँ पे coordinate axis है x, y, z, और इस coordinate axis के about इसकी सारी rotation होगी। So that is something important because मैं किसी और point के about भी आपको rotate करके दिखाऊंगा in the next few seconds। So अभी अगर मुझे इसे rotate करके दिखाना है, how will I rotate it? You need to press the scroll button, all right? स्क्रॉल बटन को प्रेस करो और फिर माउस को मूव करना शुरू करो। सो आई प्रेस माय स्क्रॉल बटन एंड आई एम जस्ट मूविंग इट। सो जैसे मैं इसे मूव करता हूं, आई कैन बेसिकली रोटेट दिस पार्ट। सो दैट्स हाउ आई कैन डू अ रोटेशन एंड यू नीड टू फोकस। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही इसके अंदर। every rotating movement is happening about that coordinate axis, all right? Now let's say कि ये यहाँ पे आके मैंने एक अलग पोजीशन पे छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे इसकी वही स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन देखनी है जहां से ये प्रोडक्ट को मैंने बनाया था, और उसको मैं वहां से देखना चाहता हूं। सो यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ बेसिकली standard orientation right here। This is the palette that you will be using। So you click on standard orientation और ये वहां पे वापस आ जाता है। So if I press the scroll button again and I start rotating it, let's say मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया and I want the standard orientation back, you can click on standard orientation। सो आपके पास यहाँ पे और फर्दर ऑप्शंस हैं। यू हैव लेट्स से जैसे आपके पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में व्यूज होते थे, यू वांट टू सी द फ्रंट व्यू। सो दिस इज हाउ यू डू इट। यू जस्ट क्लिक ऑन फ्रंट, आपको फ्रंट व्यू दिखा देगा। यू जस्ट वांट टू सी लेट्स से द टॉप व्यू, आप टॉप व्यू पे क्लिक करो, ये आपको टॉप व्यू दिखा देगा। इफ यू वांट टू सी लेट्स से द लेफ्ट हैंड व्यू, ये लेफ्ट हैंड व्यू दिखा देगा। But now the question that might be coming in your mind is, sir, how do you know which is the front, which is the back, which is the top part? See, for that, what I will do, what I need to understand is the plane display। All right, ये हम बाद में सीखेंगे। बेसिकली जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन करते हो, इस मतलब क्यूब की या किसी कंपोनेंट की कंस्ट्रक्शन करने जाते हो, आप स्टार्टिंग में वो प्लेन सिस्टमैटिकली चूज करते हो जहां पे आप चाहते हो आपका फ्रंट व्यू दिखेगा। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, जैसे आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक आप मतलब सिस्टम फॉलो करते थे ना। अगर आपका क्वेश्चन होता था यू नीड टू ड्रॉ दिस इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो आपको पता होता था कि बेसिकली फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा, और आपका राइट हैंड साइड व्यू साइड में, मतलब पर्सपेक्टिव व्यू एक साइड में दिखेगा। एक आप मतलब सिस्टमैटिक वे से उसको ड्रॉ करते थे ना। यहाँ पे भी आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा while choosing which plane basically will be your front plane, which which component feature of the component will be on the top plane, which feature of the component will be on the side plane। That's something we'll learn in, I would say, lecture 3 or lecture 4। अभी सिर्फ I'm just telling you कि यहाँ से आप orientations को set कर सकते हो when you need to create more features, all right? It helps you। So I'll again close this plane display। So we have learned how to basically zoom in, zoom out. That's basically moving the scroll button further or backward. We have learned how to rotate the component about the central axis. That's by pressing the scroll button and then moving the mouse। Now, if you want to zoom in and zoom out, अगर आप zoom in, zoom out करना चाहते हो किसी particular point के about, let's say, look at my cursor। Let's say ये cursor मैंने यहाँ पे corner में रख लिया and I want this part to get zoomed in or zoomed out about this point। What I can do is I can press the control button from the keyboard, I can press the scroll bar button on my mouse, and then I can move my mouse either in the front direction or in the back direction। ठीक है, माउस को सिर्फ आगे और पीछे लेके जाओ। पहले क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करो, फिर क्या करना है, स्क्रॉल बार बटन को प्रेस करो, और फिर माउस को आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। सो यू कैन सी ये जब जूम आउट होता जा रहा है तो उस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ऑलराइट। और जब ये बेसिकली जूम इन हो रहा है तो ये बाहर आ रहा है। वी कैन अगेन सी कि यहाँ पे लोकस चेंज कर लेते हैं। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, I'll press the control button, I'll press the scroll bar button, keep it pressed, and then I'll move it down। डाउन करते हैं तो वो बाहर चला गया स्क्रीन से, प्रेस्ड है अभी सब कुछ। और मैं इसे अगर ऊपर लेके जाता हूँ माउस को, यू कैन सी वो उस पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन जूम इन एंड जूम आउट अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ये स्क्रीन से लेट से बाहर चला गया, यू कैन बेसिकली रीफिट इट, ऑलराइट।
So that's the third mouse control that I just taught you. Now, likewise, if you want to basically pan, or basically, let's say you want to now the third control was to you zoomed in or zoomed out about a particular point. Now, if you want to rotate the component about a particular point, हमने rotation पहले देखा था, पर वो पहले था आपके coordinate system के about. I can do it again. What we just need to do is press the center scroll button and rotate the component. All right, I can do it. So if I want to rotate it about a particular point, how can I do that? You need to again press the control button on the keyboard. You need to press the scroll bar button and choose the location about which point would you like to have the rotation. Let's say I would like to rotate it about this particular location. So I'll press the control button. I'll press the central scroll bar button and I'll move it sideways this time. So you can see जब मैं sideways move करता हूँ तो अब जो rotation हो रही है वो different है. वो इस point के about हो रही है. All right. So I can choose any other point. Let's say I choose this point now. So control button को press किया, scroll bar button को press किया और sideways move किया. So इस point के about rotation हो रही है. Alright. Let's say इस point के about करना चाहते हो, control को press करके रखो, scroll bar को press करके रखो और sideways move करो. So इस point के about rotation हो रही है. So basically this is the fourth mouse control that's important while you're basically working in PTC Creo. नाउ लाइकवाइज अगर आप पैन करना चाहते हो इसको लेके, जब आपकी असेंबली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, स्क्रीन के ऊपर फिट होने में भी आपको कुछ फीचर्स नहीं दिख रहे, हाउ डू यू पैन दीज ऑब्जेक्ट्स? व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रेस द शिफ्ट बटन दिस टाइम एंड बेसिकली यू नीड टू प्रेस द स्क्रॉल बार बटन, और ये पैनिंग भी जो होगी वो पैनिंग बेसिकली एक पॉइंट के अबाउट होगी. तो जहां पे भी मेरा कर्सर है, लेट्स से मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, सो आई विल प्रेस द शिफ्ट बटन, आई विल बेसिकली प्रेस द कंट्रोल स्क्रॉल बार बटन एंड देन आई कैन ड्रैग इट. जहां पे भी मैं ड्रैग करूंगा ये इस पॉइंट के अबाउट पैन हो रहा है. ऑलराइट, लेट्स से आई लीव इट अबाउट दिस पॉइंट और मैंने सब कंट्रोल्स छोड़ दिए. लेट्स से यहाँ पे आ गया मेरा कर्सर, I press the shift button, I press the central scroll bar button, and then I can pan it about this point. All right. So this is the fifth mouse control, and this is all about mouse controls. All right. I hope सबको पता लग गया होगा. I can quickly give like a 1 minute brief up about all these controls. First, it's basically zooming in and zooming out. So आप scroll bar को पीछे और आगे move करके इसको basically zoom in zoom out कर सकते हो, यहाँ से refit हो जाता है. Then rotation about the coordinate axis, the original one. Scroll bar को press करके रखा, you rotate it. That's how you do it. All right. Get it back to the standard orientation. The third one is zooming in, zooming out about a particular point. You need to press the control button, you need to press the scroll bar button, and then you move further or behind. तो आप zoom in, zoom out कर सकते हो इस point के about. All right. Now, if you want to, the fourth option, basically a rotation about a particular point, you basically choose a point, press the control button, press the scroll bar button, and then you basically move it sideways. You can have rotation about a point. Now, panning, the fifth option and the last option, basically you press the shift button, you press the scroll bar button, and then you choose the point where you would like to be, where you would like the loci to be for panning. So you press shift, you press scroll bar, and you can pan. All right, so this is about the mouse controls. किसी को कोई doubt? All right, so I'll close this option and now I'll quickly tell you about the purge command. All right, we need to understand three things. One is basically, let me first close it. All right, यहाँ पे जब मैं इसे close कर रहा हूँ ना, there is one other thing. Just focus on this one. In session. There is this thing called in session और यहाँ पे ये मैंने dice का part load किया था. So यहाँ पे in session ये dice आ गया. What is this in session? It's basically, I would say, your virtual memory or sorry, your video memory. VRAM जिसे बोलते हैं basically. आपकी RAM के अंदर ये part अभी भी पड़ा हुआ है. मैंने इसको close कर दिया. अगर आप ध्यान से देखो, मेरी window it's just fresh as if I've just launched the software. और कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा. बट अगर मैं इन सेशन को प्रेस करता हूँ, वो कह रहा है कि नहीं, आपको चाहे कुछ नहीं दिख रहा, बट बेसिकली आपकी रैम के अंदर पीटीसी क्रियो ने अभी भी डाइस का पार्ट रखा हुआ है, तो आपकी रैम को ये कंज्यूम कर रहा है. सो विल कम बैक टू दिस थिंग अगेन. इन सेशन मींस रैम के अंदर ये पार्ट है. ऑलराइट, नाउ लेट्स क्रिएट अ वेरी सिंपल पार्ट and let's understand some of the features of this part. और उससे हम basically understand करेंगे what do we mean by versions in PTC Creo and what do we mean, like we mean by the purge command. All right. So we go to this option of new. Whenever you have to create a new model, you'll go to this option of new. So when you click it, you see this pop-up window. इस pop-up window में आपके पास कुछ options हैं. So you have this option of creating a layout.
we will not be using it. We have this option of creating sketch. Sketch is basically a 2D drawing, all right? We will be using it very much. We have this option of creating a part. Basically, if you want to create 3D components, that's when you will refer to this drop down menu or like this radio button. When you have to create assemblies, तो आप assembly का template चुनोगे. This is basically, I would say, a template. स्केचिंग करनी है तो स्केचिंग का टेम्पलेट चूज करो, पार्ट मॉडलिंग करनी है तो पार्ट मॉडलिंग का टेम्पलेट चूज करो, असेंबली करनी है, असेंबली मींस जब आपके पास 5-6 कंपोनेंट्स बनाए हैं और उनको जोड़ के आप बेसिकली टॉलरेंस फिट उनकी इंटरफेरेंस चेक करना चाहते हो, कंप्लीट असेंबली दिखाना चाहते हो. लेट्स से इफ आई से यू मैन्युफैक्चर लाइक और यू डेवलप अ कार मॉडल, तो कार के मॉडल में तो ये दे विल बी लाइक 1000 कंपोनेंट्स, इवन अ नट एंड अ बोल्ट विल बी काउंटेड एज अ कंपोनेंट, ऑलराइट? तो उनको असेंबल करके आप कार कैसे बना सकते हो, सो दैट्स व्हाट यू विल बी डूइंग इन दिस टेम्पलेट, ऑलराइट? देन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग टेम्पलेट. अगर आपने कुछ पार्ट मॉडलिंग कर ली, पार्ट मॉडलिंग मींस सिंगल कंपोनेंट, असेंबली मींस जॉइनिंग ऑल द कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग मींस अगर आपको अपनी कैम बेसिकली सीएनसी मशीन्स को कोई ना कोई इनपुट देनी है वो पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके लिए भी एक टेम्पलेट है. वी विल नॉट बी यूजिंग इट. वी विल मेजरली फोकस ऑन स्केच, part and assembly only. And for the first 1 or 2 weeks, I would say we will just focus on sketch. For the next entire semester, I would say 70 or 80% will go to part modeling, and remaining 10% will just focus on assembly. We will not be using any other, but we will use one other thing, that's drawing. All right. So this is what you will do. This is the template for basically production drawings. What are production drawings? जब भी आपने अपना कोई आइडिया कंसीव किया, ऑलराइट, कोई कंसेप्चुअल डिजाइन आपने मतलब आपके दिमाग में था, यू कुड बेसिकली स्केच्ड इट आउट, आपने उसके इंडिविजुअल पार्ट्स की बेसिकली मॉडलिंग कर ली, आपने इंडिविजुअल पार्ट्स को असेंबल करके एक प्रॉपर असेंबली आपके जो भी आपका डिजाइन था, आपका बेसिकली प्रोडक्ट था, आपने मतलब बना लिया. आपको अब किसी प्रोडक्शन इंजीनियर को जो शॉप फ्लोर के ऊपर है, जो बेसिकली मशीन्स के ऊपर काम करता है, आपको उसको ड्राइंग देनी पड़ेगी ना कि सर ये अब आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो ये डायमेंशंस हैं जो बेसिकली हमें मैन्युफैक्चर करनी है. सो वो आप ड्राइंग के टेम्पलेट से करते हो. सो विल जस्ट फोकस ऑन स्केच, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग. दीज 4 इन दिस एंटायर कोर्स, नथिंग बियॉन्ड दैट. मास्टर्स में हम आगे जाते हैं, बट बैचलर्स में ये 4 टेम्पलेट्स. Though we will be going for sketch modeling for the first 2 weeks, but in order to explain you the idea behind versions, VRAM, HDD, purge command, मेरे को अभी part modeling में enter करना पड़ेगा. Alright, within the part modeling, whenever you go for part modeling, यहाँ पे आपके पास सब type होगा. मतलब part modeling में आप या तो solids बना सकते हो, या sheet metal, hollow components बना सकते हो, या bulk modeling. We will not be going for bulk modeling anytime in this course. Just solid or sheet metal. Majority of the time solids. So let's say we have part modeling, solid. Now what's the file name? Let's say I choose it to be something like XYZ. I can name it anything, but as of now, just for like demonstration purpose, I've chosen as XYZ. Now there is this option of using the default template. I will unselect it. You also have to unselect it. What do you mean by using the default template? It simply means कौन सा यूनिट सिस्टम फॉलो करना चाहते हो जब भी आप अपनी पार्ट मॉडलिंग कर रहे हो, बिकॉज फिर वही यूनिट सिस्टम आपको आपकी ड्राइंग में दिखेगा. जब ये पार्ट्स यहाँ पे ये स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, फिर आप ड्राइंग के लिए जाते हो. सो आप यहाँ पे वही टेम्पलेट यूज करो जो आपका बेसिकली मतलब यूनिट सिस्टम है जो आप यूज कर रहे हो. ऑलराइट, सो यू अनसेलेक्ट इट and then you click on OK. Unselecting it means you want to choose a different unit system. All right. अगर इसे selected रखोगे तो ये inches, pounds और seconds में चला जाता है. मैं unselect कर रहा हूँ because मैं millimeter, newton, second choose करना चाहता हूँ. All right. किसी को doubt इस बात में? No, sir. All right. So you unselect it. यहाँ पे what is the current template? It says inches, pounds, seconds, part, solid. I do not need this. I'll go a little down. I'll say millimeters, Newton, second, part, solid. This is what I will be using for this entire course. And you also have to follow the same system. If you forget it and you basically draw the production drawings in the inches, you'll be losing marks. So do remember to unselect that option. और उसके बाद millimeters, Newton, second, part, solid को ही choose करना. And then you click on OK. So I click on OK. So this is the screen for part modeling. All right, do not worry about it. यहाँ पे हमने अभी planes बंद कर रखे हैं. जी सर, जहाँ पे आपने यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट अनसेलेक्ट किया था उसके बाद से आप रिपीट कर सकते हो प्लीज? Sure, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. I'll go to new part solid
फाइल नेम लेट्स से ABC, लेट्स से ABC कर देते हैं, इसको अनसिलेक्ट कर देते हैं, ऑलराइट, एंड क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे नीचे जाके आई विल सिलेक्ट millimeters Newton second part solid, alright, so just click on OK, nothing else. Was there in the chat? Someone asked a question that is there no way to change it later, the template from inches to mm? No, there is no way. एक बार गलती से चूज हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, so you need to be like careful right there in the beginning. That's why I'm like having this 5-minute discussion on this part. ये बाद में change नहीं होगा, एक बार यूनिट सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया प्रॉब्लम आती है। एंड आई ऑल्सो लेट यू नो कि ड्राइंग से पहली प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, आपने एक पार्ट मॉडल कर दी, लेट से आपके पास कोई असेंबली है, लेट से आपका फोन ही बना रहे हो आप, आपके पास आपका फोन है, सो आपके पास एक स्क्रीन है, लेट से वी टेक 2-3 कंपोनेंट्स, एक स्क्रीन बनाओगे, एक अपर बॉडी बनाओगे, एक लोअर बॉडी बनाओगे, 4-5 स्क्रूज बनाओगे, 2-3 नट्स बनाओगे, एक लेंस बनाओगे। अब आपने जो यूनिट सिस्टम फॉलो किया, लेट्स से वी हैव 10 कंपोनेंट्स, सारे के सारे 10 में से 9 कंपोनेंट्स आपने यूज कर लिया मिलीमीटर न्यूटन सेकंड पार्ट सॉलिड, क्योंकि ये 10 पार्ट फाइल्स बनेंगी, ऑलराइट। 9 पार्ट फाइल्स जब आपने ड्रॉ की तो आपने ये सिस्टम फॉलो किया जो मैंने आपको दिखाया है, एक में गलती से आप भूल गए, सो व्हाट विल हैपन इज वो यूनिट इंचेस में होंगे, और फिर पार्ट मॉडलिंग के बाद जब आप असेंबली करने जाओगे ना, वो डायमेंशंस मैच नहीं करेंगी। 9 कंपोनेंट्स आ जाएंगे मिलीमीटर के स्केल में अंदर, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इंचेस में, तो वो कंपोनेंट काफी बड़ा बन जाएगा। लेंस लाइक आई वुड से आपके बाकी सारे कंपोनेंट्स मिलीमीटर्स में है, लेंस आपका इंचेस में आ गया, सो वो असेंबली नहीं हो पाती। सो बी केयरफुल राइट देयर इन द स्टार्ट, जस्ट सिलेक्टेड, बाद में चेंज नहीं होगा। सर यहाँ पे अकेले सॉलिड के ऑप्शन ही है, सॉलिड के बाद ABS है, एक में REL लिखा ओके, हुआ है। जिसके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव की ऑप्शन आ रही है वो हमेशा एब्सोल्यूट चुनेंगे, ठीक है। ये Okay, नया वर्जन है आपके पास, गुड दैट यू यूजिंग इट। किसी के पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव की ऑप्शन आ रही है, इस कोर्स के अंदर हमेशा और हमेशा आप एब्सोल्यूट ही चुनोगे, ऑलराइट। सो वी क्लिक ऑन ओके एंड देन यू हैव दिस स्क्रीन दैट पॉप्स अप। जब आपके पास ये स्क्रीन आ गई, नाउ अगेन आई विल रिपीट व्हाटएवर आई एम लाइक गोइंग टू डू हियर, टू थिंग्स, डू नॉट वरी हाउ डिड आई चूज दीज प्लेन्स, क्यों चूज किए नहीं सोचना अभी, विल फोकस ऑन इट इन द कमिंग लेक्चर्स। सेकेंड थिंग, ये डायमेंशंस कैसे नहीं सोचना अभी, बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि सर ने एक कंपोनेंट बनाया और उसके ऊपर कुछ फीचर्स बनाए, आपका फोकस सिर्फ ये दो चीजों पे होगा। डू नॉट वरी अबाउट द प्लेन्स, डू नॉट वरी अबाउट द डायमेंशंस। So I will quickly create a few, like a small part. Let's say I go to extrude. I choose this, let's say front plane, and I'll create a rectangle here. Do not worry, I will teach everything in the next lecture. यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, 3D पार्ट मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है, मैंने इसको थोड़ा सा सेट किया, इसको प्लेन्स के अबाउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड देन आई क्लिक ऑन ओके, ऑलराइट। सो मेरे पास एक 3D मॉडल तैयार हो चुका है। इसको भी ऑब्जर्व करने के काफी तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो तो शेडिंग, यहाँ पे आप देखना चाहो ना कि इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, सो यू जस्ट गो फॉर हिडन, और यू कैन बेसिकली सिलेक्ट द हिडन लाइंस। अभी हमारा सॉलिड पार्ट है ना, तो आपको सिर्फ ये कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा, शेडिंग आपको नीचे अब देखो शैडो भी दिखनी शुरू हो जाएगी। सो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन बेसिकली विजुअलाइज दिस पार्ट। आई चूज बेसिकली द सेकेंड वन, ये प्रेफर्ड रहता है, शेडिंग विद एजेस, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आता, थोड़ा फोकस करना ईजी रहता है। So I've created one part, all right. This is basically the model tree, और model tree में वो कह रहा है कि आपने एक extrude किया है। I say okay, and then I go and save this part, all right. I go to this option of save, and save के अंदर I have already the file name selected, इसको अब change नहीं करना। So this will be saved in the trials folder because we set trials as a working directory. So we click on OK, all right. As and when I do that, you can see ABC has been saved. Now, if I go to this option, I would say यहाँ पे देखते हैं, so मेरे पास ये ABC part आ गया, ठीक है। मैं इसका view change कर देता हूँ with details. So you can see a part ABC has been created around 10:18 AM and it is having a size of 80 KB. All right, let's go back to this. Let's create a feature on this one. So we go to this option of extrude. Extrude के अंदर let's say I select this front plane. Do not worry what happened, how it happened. Just focus कि एक feature create हो रहा है. I'm creating a circular like cut, all right. So यहाँ पे मैंने इसको एक बनाया, do not worry about the dimensions. I reverse it and basically I make a cut.
So you can see we have a feature here. I'll close the planes for a better visualization. So यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक फीचर बन गया. So यहाँ पे extrude 2 आ गया आपके पास. Let's save it now. Alright. इसको अगर मुझे सेव करना है, just one second. Alright. So यहाँ फाइल पे गए, इसे सेव करते हैं. So as and when I do that, I click on save. नीचे ऑप्शन आती है ABC has been saved. Now let's look in the Windows Explorer window कि क्या हुआ. यहाँ पे आप देखो एक पार्ट जो हमने क्रिएट किया था 1080 EM पे, वो 80 KB का था. सेम नेम से एक और abc.prt का मतलब फाइल बन गया जो 1019 EM पे क्रिएट हुआ है और उसका साइज बढ़ गया बिकॉज हमने एक फीचर ऐड कर दिया उसके अंदर. ऑलराइट. सो ये तो मतलब क्या हो रहा है कि आपके वर्जन्स बन रहे हैं. एक वर्जन इस टाइम पे क्रिएट हुआ है और वो आपके पास फाइल रिटेन्ड है. एक वर्जन जो अभी मैंने फीचर बनाया उसके साथ ये फाइल रिटेन्ड है. Let's create another feature. We can go to this option of extrude. Let's say we choose this plane. इसके अंदर let's say we take some sort of a rectangle. Let's say यहाँ पे एक rectangular cut slot बनाने की कोशिश करते हैं. So I reverse it. Do not worry about the dimensions. I'm time and again repeating this part. So you again created some sort of a slot. So I can call it a feature. So you can see we have extrude 3 now. All right. So यहाँ पे ये part आपके पास बन गया. इसको standard orient कर लेते हैं और यहाँ पे इसे save करते हैं. We save it again. As and when we do that, we have ABC has been saved. अब Windows Explorer में देखते हैं क्या हुआ. So Windows Explorer में अब तीसरी एक फाइल और आ गई. अब इसका साइज और बढ़ गया. ये है 103 KB की और आप टाइम देख रहे हो 1020 AM. So मैंने 3 बार सेव प्रेस किया, 3 फाइल्स आ गई. ये बेसिकली आपके वर्जन्स बनते जा रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स क्रिएट वन लास्ट पार्ट एंड देन आई विल कम टू द क्रक्स कि व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाई एम आई डूइंग इट. So let's say we take extrude, we take the front top plane. Let's say we take an ellipse command. यहाँ पे let's say we do something like this. We take a handle and let's say okay, whatever it is. So I've created a fourth like extrusion here. Let's say I go to save. I click on save. ABC has been saved. Let's say what do we see in my Windows Explorer window? तो मेरे पास 4 फाइल्स बनी है ABC नाम की. All right. So ये अब बनी है 1021 पे. आप देख सकते हो जब जब मैंने सेव प्रेस किया तब तब आपका बेसिकली एक वर्जन क्रिएट होता जा रहा है. So what is this? ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आपकी रिटेंशन के लिए कि बेसिकली जब भी आप सेव दबाते हो आपको एक नया वर्जन मिल जाता है. बिकॉज वी नेवर नो कि जब हम बनाने जा रहे हैं कोई पार्ट, आपके पास हर बार प्रोडक्शन ड्राइंग हाथ में हो, मतलब ड्राइंग्स हो ना हो, आप किसी चीज को कंसेप्चुलाइज कर रहे हो, आपको कई बार आइटरेट करना पड़ सकता है. क्या पता आपको लगे कि नहीं ये 2 वर्जन तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे लगता है कि मुझे चेंजेस करके यहाँ पे ये वाली फाइल से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ये मेरा सारा काम खराब हो गया ये वाले 2 वर्जन्स का, या व्हाटएवर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. The other scenario can be कि आप करते जा रहे हो, you're going good, you're going great, and this is the only file that you need. कि अब आपको है कि मेरे को क्या इतना डाटा स्टोर करके मिलेगा, मेरा कंपोनेंट बन गया and like I've completed my project. These 3 files are waste for me. मुझे ये 3 फाइल्स नहीं चाहिए. मेरे को मेरी फाइनल फाइल जो मैंने काम किया वो परफेक्ट है, इसी को रिटेन करना है. So how can I do that? कि मैं पिछली 3 फाइल्स जो 10, 18, 19, 20 पे बनी है इनको मैं एक शॉट में डिलीट कर दूं. बिकॉज अभी मैंने एक बहुत सिंपल कंपोनेंट बनाया जिसमें सिर्फ 3 से 4 फीचर्स थे. बट व्हेन यू एक्चुअली मैन्युफैक्चर और डेवलप अ कंपोनेंट विद इन लाइक पीटीसी क्रियो, यू माइट हैव 100 स्टेप्स. तो आप 100 स्टेप्स को कैसे बेसिकली रिड्यूस करके लास्ट फाइल को ही आप रिटेन कर सकते हो. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज आई कैन क्लोज इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेव्ड इट. इस विंडो को क्लोज करो, यूटिलिटीज में जाओ, वही कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो व्हिच इज बेसिकली ओपन सिस्टम विंडो, आप इसके अंदर जाओ, इसको यहाँ पे लेके आओ एंड यू टाइप वन कमांड व्हिच वी कॉल एज पर्ज. यहाँ पे पर्ज टाइप करो एंड यू जस्ट हिट एंटर. एज एंड व्हेन यू डू दैट यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बट इफ आई गो बैक टू माय विंडो यू कैन सी आई हैव रिटेन्ड द लास्ट फाइल ओनली. और पिछले प्रीवियस जितने भी वर्जन्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए, वो हार्ड डिस्क से डिलीट हुए. ऑलराइट, Can you please tell once more how do I purge and it would be difficult. I'll share the recording. Otherwise, I will have to create the entire part. I hope you get the context कि यहाँ पे पहले ABC नाम की 4 फाइलें थी. this is that I get that the 4 parts that you made, and only the problem is how to write purge. कुछ नहीं, यहाँ पे I just type purge, nothing else. ये स्क्रीन दिख रही है ब्लैक वाली, मैंने Yes, जब sir. ओपन किया था सिर्फ PURGE, that's it, enter, Okay. nothing else. एक सिंपल कमांड है. When you implement it, you can see लास्ट फाइल आपकी रिटेन हो जाती है. सो Okay. नाउ
quickly before I leave and end this session, let's go to end session. In session में क्या पड़ा है? हार्ड डिस्क से तो हमने 3 फाइलें उड़ा दी. पीटीसी ने क्या क्या स्टोर कर रखा है? उसने XYZ जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था वो भी रखा हुआ है. डाइस पार्ट जो मैंने माउस कंट्रोल्स के लिए यूज किया था वो भी रखा हुआ है. ABC पार्ट जो हमने अभी बनाया था वो भी रिटेन करके रखा हुआ है. द लेटेस्ट वन बेसिकली. सो अगर आप चाहते हो कि जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक रिफ्रेश का बटन होता है, आप सारा कंप्यूटर थोड़ा सा एक रिफ्रेश करना चाहते हो, ऐसे आप इन सेशन को भी रिफ्रेश करते हो. इन सेशन को रिफ्रेश कैसे करते हैं? यहाँ पे ये ऑप्शन है, इरेज नॉट डिस्प्लेड. तो जो भी चीजें आपको नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बेसिकली एक तरह से आपकी पीटीसी की रैम से वो सब हटा देगा. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, वो कहता है कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैं इरेज कर दूंगा मेमोरी से, हार्ड डिस्क से नहीं, मेमोरी से. अभी आपको नहीं दिखेंगे पर आपके फोल्डर्स में सेव्ड है. आई विल से ओके. और यहाँ पे इन सेशन जब दोबारा क्लिक करूंगा, इट विल कम बैक टू अ क्लीन एम्प्टी स्लेट. ठीक है. So with this, it's already 10:25. I'll end the session and I'll share this video like with you सर जो guys. पर्ज सर जो आपने पर्ज ऑप्शन बताया सर वो मैंने करा था लेकिन उससे डिलीट नहीं हो रहा सर बाकी सारे सर. जो मैंने आज प्रैक्टिस कराया ना अभी रिकॉर्डिंग से, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो. 4 फाइल्स आप भी बनाओ. अगर आपकी 4 फाइल्स बन रही हैं, एंड में आप फिर पर्ज टाइप करो, डेफिनेटली नहीं आपका हो भी होगा. सर वो डिलीट नहीं हो रहा पता नहीं सर. नहीं विंडोज होगा. ठीक है. अभी फिलहाल 10:25 आई नीड टू एंड द सेशन. मैं वीडियो लेक्चर में एक बार रिपीट कर लो. अगर नहीं हुआ, आपके लैब ट्यूटर या आपके ट्यूटोरियल टीचर जो हैं उनको बोल देना. नहीं तो ये वीडियो लेक्चर तो होगा ही साथ में. ठीक है. नहीं तो फ्राइडे को आप भी ज्वाइन कर लेना मेरी लैब में. वहां पे आके 5 मिनट्स में मैं दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा आपको. Excuse me, sir. जी मैम. Sir, in case in a single file we are saving our multiple projects and each project has multiple iterations. So if I enter the purge for that particular folder, that will act for all the different files Yes. and give their final iterations to me. 100%. अगर आपके एक फोल्डर के अंदर आपने 10 कंपोनेंट्स बनाए हैं, उनको हर कंपोनेंट को 10 टाइम्स आपने सेव किया है, सो यू विल हैव 100 फाइल्स. करेक्ट. Yes, sir. जब आप पर्ज करोगे एट द एंड ऑफ द डे, उस फोल्डर में 10 फाइल्स ही रह जाएंगी. द 10 लेटेस्ट फाइल्स फॉर एवरी कंपोनेंट. Okay, sir. Okay. ठीक है. Thank you. पर्ज इसी तरह से काम करता है. सो इट्स अ गुड ऑप्शन. मतलब एक शॉट में सब क्लीन हो जाता है. ठीक है. ऑलराइट. सर ओके. एक छोटा सा डाउट है सर मेरा. आकाश, अभी लाइसेंस यूज करना होगा किसी को 10:26. मैं कल लेता हूँ आपका डाउट डेफिनेटली. ठीक है. ओके स्टार्टिंग में जल्दी आ जाना. एज एंड व्हेन वी बिगिन द लेक्चर पहले आपका डाउट ले लेंगे. ठीक सर है. वो छोटा सा ये मतलब जैसे वर्किंग डायरेक्टरी से वो फोल्डर्स ओपन नहीं हो रहे मेरे, मतलब क्रियो में जाके ओपन हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहे. डबल क्लिक से नहीं चलेंगे, वो पीटीसी क्रियो से ही ओपन करने पड़ेंगे. दैट्स वन थिंग यू नीड टू नो. ओके सर. ओके वो डबल क्लिक वाला फंडा यही नहीं है. doubt पीटीसी क्रियो लॉन्च करो फिर ओपन से जाओ, अदरवाइज नहीं चलता वो. यस सर वही पूछ रहा था मैंने. ठीक है. चलो. ओके. आई Thank एंड you, द sir. सेशन. ओके.